I welcome all of you to this session 48 magical sentences in English. And I'll tell you how to practice and how to improve your accuracy and fluency. So, this is all about Express Entry program. And in this program, I want all of you to pay attention and learn the techniques where you can really improve your English communication. So, welcome once again for these 48 magical sentences in English. My name is Padarbin and my organization name is Mainstay Abroad. We facilitate visa, international education for Canada, Australia, New Zealand, and other European countries. We conduct IELTS, International English Language Testing System, TOEFL, Test of English as a Foreign Language, PT, Pearson Test of English, OET, Occupational English Test, and I am certified by IDP Australia of IELTS. And here, this program is all about your express entry, and here you can express yourself better. Fine. So here we go for your magical 48 sentences. Some of the candidates are joining. Sorry for little disturbance. Let me allow them. Okay. They are trying to come inside. Fine. Yes. Fine. So once again over here. So today's program 48 magical sentences in English. So here we go. So welcome to Express Yourself program. This program is all about open platform where you can express yourself, you can improve your English communication. Also, you will have lot of ideas on soft skills, interview, group discussion, and English grammar, vocabulary, and personality development. It's not all about English, it has many more topics. Keep on joining and be a regular participant of this program. Now, I would like to tell you, now the real topic starts here. Understand tense in English. I asked one student, मैं एक स्टूडेंट को पूछा कि टेंस क्या होता है, तो बहुत सारे लोग बोले, कोई टाइम बोले, कुछ बोले, बहुत सारी चीज़ें. एक बंदा खड़े होकर बोला, सर टेंस मीन्स टेंशन. तो मैंने बोला टेंशन कैसे? सर हमें ये टेंस ही इतना टेंशन देता है कि हमें समझ में नहीं आता कि सेंटेंस कैसे बनाएं, और दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज. और मैंने बोला अरे तुम तो बहुत अच्छा आंसर दिए, टेंस मीन्स टेंशन, पूरा करेक्ट है. सो इस टेंशन को दूर करने का सबसे इजीएस्ट टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगा, which is not written in most of the grammar book and dictionary और it's not introduced, लेकिन एक ट्रिक से आपको समझना होगा. इफ आई आस्क एनीबडी, प्लीज बी ओपन विदाउट एनी हेजिटेशन, टेल मी एक टेंस में कितने सेंटेंस होते हैं. कभी आप तो बचपन से पढ़े हैं टेंस चार्ट. कैन एनीवन टेल मी हाउ मेनी सेंटेंसेस आर देयर इन टेंस? और आप खुद को म्यूट कर दीजिए and whenever you want to answer just unmute and answer. Yes, can anyone tell me how many sentences are there in tense? बता पाएंगे anybody? Just guess. Sir, 4 sentences. 4 sentences. Okay, okay. Anybody? Very good. Anyone? Could you please reply? Many more, sir. 12. Yeah. Sir, Yes. 6. 6. Okay, 6, 4, 5. 6. Okay. Let me tell you, यदि आप पूरा होल टेंस को मिलाएंगे एक्चुअल फॉर्म में 120 सेंटेंसेस होते हैं, 120 सेंटेंस होते हैं टेंस में. इंग्लिश का डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल ऑफ ओके स्ट्रक्चर में 120 सेंटेंसेस हैं, रिमेंबर. एंड ये आपका एक्टिव और पैसिव वॉइस दोनों को ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में मिलाएंगे तो उसमें 120 सेंटेंस होते हैं. और आपका इंग्लिश को सुंदर करना है तो आपको 120 नहीं चाहिए. यू नीड ओनली 48 सेंटेंसेस. फ्रैंकली स्पीकिंग, if you want to improve fluency and accuracy, grammatically correct, you start with 48 sentences. और सिर्फ 48 सेंटेंसेस आपको अमेजिंग एक्सपेक्ट देंगे. और 48 से भी और कम, जो कि हम ज़्यादातर 34 सेंटेंसेस एक्टिवली यूज करते हैं हम लोग. 32 एक्टिव यूज होते हैं, रिमेंबर. तो लेकिन जानकारी के लिए आपको रखना होगा सपोर्टिव पॉइंट ऑफ व्यू में ओनली 48 सेंटेंसेस. और एक एंगल में देखेंगे तो आपका 80 सेंटेंसेस, 120 से 80 आपको पहले अचीव करना है, उसके बाद 120 जाना है. और भी उसको शॉर्ट बनाएंगे तो
32 और 32 से और भी अच्छे से थोड़ा सा इंप्रूवमेंट चाहिए था 48, लेकिन 48 इज हाईली रिकमेंडेड बिकॉज आई हैव रिकमेंडेड मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स, और मैं बहुत रिमोट एरिया में जाकर पढ़ाया हूँ। ये टेक्निक सिंपल है, आप देखेंगे ना आपको बहुत इजी लगेगा, इतना सिंपल है। And I have already implemented from my training career and I have got tremendous success from most of the students. आपको लगेगा आसान, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे आज मेरे साथ, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होते हैं हमारे साथ। ओके, व्हाई वी लूज आवर फ्लुएंसी, why we are not fluent while speaking English, and where we exactly commit mistakes, you will really come to know about it. So are you all ready right now? Please let me know, are you all ready to know? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay, very good. Fine. So now focus. Let's understand briefly about your tenses. Understand here one thing, time plus action. Always remember, tense means time plus action. So here time factors is all about present, past and futures. We have this is universal concept. हर एक भाषा का एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, एंड इन दैट कॉन्सेप्ट वी हैव प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम एंड फ्यूचर टाइम। एग्री? वेरी सिंपल। बट हाउ यू कैन फाइंड योर टेंस इन दैट पर्टिकुलर टाइम? जस्ट एड एक्शन, कि उस टाइम में आप कौन सा काम करते हो, दैट वो बन जाता है टेंस। सिंपल सिंपल, जो टाइम में जो काम करोगे वो होता है टेंस। वेरी सिंपल, टाइम प्लस एक्शन। और कुछ दिमाग मत लगाइए, ज्यादा एनालिसिस मत कीजिए, नहीं तो पैरालिसिस होगा। सिंपल वे में अंडरस्टैंड कीजिए, टाइम प्लस एक्शन और कुछ नहीं। प्रेजेंट टाइम में जो काम करो वो प्रेजेंट टेंस चला जाएगा, पास्ट टाइम में जो जो काम हुआ है वो पास्ट टेंस चला जाएगा। फाइन। सो हियर यू नीड टू अंडरस्टैंड स्पेसिफिकली। बट लेट मी टेल यू, मॉडर्न ग्रामेरियन वो फ्यूचर को टेंस नहीं मानते हैं। ओल्ड ग्रामेरियन ग्रामर बुक में फ्यूचर टेंस है। क्यों नहीं मानते हैं? बिकॉज फ्यूचर के लिए कोई वर्ब फॉर्म नहीं है, और वर्ब मीन्स एक्शन। इन इंग्लिश लैंग्वेज वर्ब मीन्स एक्शन, नॉट ओनली इंग्लिश, संस्कृत ले लीजिए, तेलुगु, बंगाली, हिंदी, ओडिया, कोई भी भाषा ले लीजिए, हर एक वर्ब होता है एक्शन। और इंग्लिश में 70% वर्ब यूज होते हैं। Every time we use a verb form, 70% verb we use in English. So हमें verb को नहीं छोड़ पाएंगे। Always remember. So that's why आपका हर एक एक्शन में एक verb होता है, और एक वो verb जो है वो grammatical term है। और याद रखिए, verb means action, जो काम करते हैं वो है verb, VERB, right? So जिस टाइम में जो एक्शन करेंगे वो होता है टेंस। प्रेजेंट टाइम के लिए प्रेजेंट वर्ब इंग्लिश में है, पास्ट टाइम के लिए पास्ट वर्ब इंग्लिश में है, फ्यूचर के लिए वर्ब फॉर्म नहीं है इंग्लिश में। दैट्स व्हाई देयर इज नो फ्यूचर टेंस, इट इज फ्यूचर टाइम। टाइम है, टुमारो है, डे आफ्टर टुमारो है, कमिंग है, नेक्स्ट मंथ है, 2021 है, दिस टाइम बता पाएंगे, बट एक्शन लेना पड़ेगा प्रेजेंट और पास्ट को। दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट इंग्लिश कॉन्सेप्ट। नाउ इतना टर्म्स में नहीं जाएंगे, सिंपल वे में समझेंगे। प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस है और फ्यूचर टाइम है, क्योंकि फ्यूचर के लिए वर्ब फॉर्म नहीं है। क्योंकि नहीं है, देखिए, अब गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज बोलते हैं। गो आ गया प्रेजेंट, वेंट पास्ट हो गया, गॉन पास्ट पार्टिसिपल हो गया, फिर गोइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में आ जाते हैं। यानी आपको फ्यूचर के लिए कोई वर्ब ही नहीं है इंग्लिश में। देयर इज नॉट एट ऑल एनी वर्ब। कोई भी अमेरिकन, ब्रिटिश वाले वर्ब नहीं बनाए हैं। दैट इज द वे ऑफ, दैट इज आवर अंडरस्टैंडिंग। Someone is there, I guess. Let me just make the person enter into this part. Fine. So here you need to understand specifically. All right. So there is no future verb in English. That's why it's not a future tense. It's a future time because we have time factors. Understand this one. टर्मिनोलॉजी में यू जस्ट, दिस इज ए टेंस टर्मिनोलॉजी। ये ग्रामर का लैंग्वेज है। ग्रामर के लैंग्वेज में सिंपल होते हैं, प्रोग्रेसिव होता है, परफेक्ट होते हैं, परफेक्ट प्रोग्रेसिव है। इफ यू हैव स्टडीड इट, जस्ट रिकॉल योर स्कूल ग्रामर और रिकॉल योर ओके टीचिंग ऑफ योर इंग्लिश फैकल्टीज। तो आप थोड़ा रिकॉल कीजिए कि प्रेजेंट का 4 फॉर्म्स होते हैं, जो कि प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। ये सब फॉर्म है, स्ट्रक्चर है, अंदर सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। याद रखिए, स्लॉट है ये सारे। एंड पास्ट टेंस में भी ये 4 फॉर्म यूज होते हैं, फ्यूचर टाइम के लिए भी 4 फॉर्म यूज होते हैं। याद रखिए, क्योंकि बहुत सारा सेंटेंस है ना, सेंटेंस को
एक एक बॉक्स में कैटेगराइज किया गया है और इससे एक कैटेगरी एक बॉक्स है ये, सिंपल। नाउ अंडरस्टैंड, एवरी पार्ट हैज फोर, एवरी फॉर्म यानी जैसा कि मान लीजिए सिंपल का फॉर्म में ये 4 सेंटेंस है। पॉजिटिव यानी एक सेंटेंस है, निगेटिव यानी एक सेंटेंस है, यहाँ पे पॉजिटिव इंट्रोगेटिव, मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ स्लाइड, यहाँ पे थोड़ा सा नहीं हुआ, यहाँ पे चेंजेस, यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, ये आपका पॉजिटिव इंट्रोगेटिव होगा। दिस पार्ट इज गोइंग टू बी योर ओके पॉजिटिव क्वेश्चंस, जो इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चंस, ये मैं क्यू दे दिया, क्यू मीन्स क्वेश्चंस, एंड दिस वन इज नेगेटिव क्वेश्चंस। मैं ये भूल गया था बनाना, थोड़ा छोड़ दिया था। ओके, नेगेटिव क्यू फॉर क्वेश्चंस। ऑल राइट, नाउ इट इज वेल डन। नाउ नोटिस वंस अगेन। ओके, सो फोकस हियर। सो ये है पॉजिटिव यानी एक सेंटेंस है, निगेटिव एक सेंटेंस है, पॉजिटिव क्वेश्चन एक सेंटेंस है, निगेटिव क्वेश्चन एक सेंटेंस है, ओवर। तो सिंपल, प्रेजेंट सिंपल कैसे पढ़ते हैं, याद रखिए, प्रेजेंट सिंपल हैज 4 सेंटेंसेस। क्या क्या सेंटेंस हैं? पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव यानी पॉजिटिव क्वेश्चंस, नेगेटिव क्वेश्चन, इंटरोगेटिव जो है क्वेश्चंस वही है। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का भी 4 हैं, प्रेजेंट परफेक्ट 4 हैं, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव 4 हैं। आप पूछेंगे सर ये सिंपल प्रोग्रेसिव परफेक्ट समझ में नहीं आता है, करेक्ट, आई एग्री विथ यू, लेकिन मैं आपको इसको टाइम बताता हूँ, इसका हिडन सीक्रेट क्या है। जो रेगुलर हैबिट्स होते हैं, पास्ट में या प्रेजेंट में, फ्यूचर में कुछ चीज़ करना है, ये सिंपल फॉर्म में कहा जाता है। जो हो रहे हैं या हो रहा था, ये होगा, कंटिन्यू होगा कोई काम, उसको प्रोग्रेसिव कहते हैं। जो बीत चुका है, सारा काम खत्म हो चुका है, वो परफेक्ट होता है। वो काम चलते आ रहा था लेकिन कुछ जगह पे खत्म भी हुए हैं, चलता भी रहेगा, ये सारे परफेक्ट प्रोग्रेसिव हैं। ये सारे एक्शन को बताने के लिए ये सारे नाम दिया गया है, कुछ नहीं है। आपको आगे का स्लाइड्स और इजियर कर देगा इसको समझने के लिए। फाइन, यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर, जस्ट वॉच, हैव पैशंस, यू रियली कम टू नो लॉट ऑफ थिंग्स। नाउ फोकस हियर कि यहाँ पे आपको सिंपल प्रेजेंट हैज 4 sentences, remember, okay? So present progressive has 4, present perfect has 4, present perfect progressive है 4, यानी present tense में ही आपका यहाँ पे 4 4 4 4 4 4 4 जा 16 है, पास्ट में भी 16 आ जाएगा, फ्यूचर में भी 16 आ जाएगा। ऑल राइट, और इन दोनों का एक फॉर्म होते हैं, एक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, यानी आपको सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर। और आज हम सिर्फ एक्टिव को ही देखेंगे, पैसिव को मैं नेक्स्ट सेशंस में लेकर रखा हूं, जो कि आपको और 32 मैजिकल सेंटेंस में सिखाऊंगा, लेकिन आज मैं आपको 48 को सिखाऊंगा एक्टिव फॉर्म में, क्योंकि एक्टिव होना बहुत जरूरी है सबको पहले, राइट? सो नाउ फोकस हियर। सो प्रेजेंट टेंस में ही 16 एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस छुपा हुआ है, पास्ट में भी 16 एक्टिव वॉइस का सेंटेंसेस है। एक्टिव वॉइस जो रोज हम बात करेंगे एक्टिवली, द वे आई एम स्पीकिंग। फ्यूचर टाइम has 16 active voice sentences। तो 16 यानी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को मिलाने से 16 हो जाते हैं, 16 एंड 16 टोटल हो गया 48 सेंटेंसेस, याद रखिए। और 48 सेंटेंस को आपको विद इन अ मिनट बोलना है। 48 डिफरेंट सेंटेंसेस should be spoken within a minute। That's your talent, that's your techniques that I'm going to share with you। ग्रामेटिकली करेक्ट, एक भी फ्लॉ नहीं होगा, नो मिस्टेक एट ऑल इफ यू लर्न इट। और यदि एक स्लाइड में समझ में नहीं आ रहा है, एक क्लास में समझ में नहीं आ रहा है, सो आई एम रेडी टू गिव यू ओके 10 to 15 सेशन ऑन दिस पार्ट, लेकिन आज आई विल मेक यू वेरी सिंपल हाउ यू कैन अंडरस्टैंड इट। इस नोट्स को फॉलो करेंगे, मैं लिंक भी भेजूंगा आपको ऑन योर व्हाट्सएप, यू विल कम टू नो लॉट मोर अबाउट इट। ओके, सो नाउ फोकस हियर। ये है आपका सिंपल प्रेजेंट का, ये है आपका सिंपल प्रेजेंट फॉर्म, याद रखिए। सिंपल प्रेजेंट का पहला चीज है, मैं आपको विजुअलाइजेशन के लिए यहाँ पे नहीं लिखा सिंपल प्रेजेंट बोल के, आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर ये प्रेजेंट टेंस का एक स्ट्रक्चर है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, पॉजिटिव इंट्रोगेटिव, निगेटिव इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव जो है क्वेश्चंस वही है, ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर्स हैं। इसमें देखिए कोडिंग है, ये जो कोड जैसा लग रहे हैं ये सारे टेक्निक्स हैं। कैसा टेक्निक्स है मैं आपको बताता हूँ। एस फॉर सब्जेक्ट है, वी फॉर वर्ब लेंगे, यानी वर्ब 1 वर्ब 5 लेंगे,
और आपको मैं आपको लिख के भी बताऊंगा इसको। एंड आपका जो ओ है वो ऑब्जेक्ट है, सी फॉर कंप्लीमेंट, यानी कुछ जगह पे ऑब्जेक्ट यूज होगा, कुछ जगह पे कंप्लीमेंट यूज होगा। ये कैसे होता है मैं आपको सिंपल बताता हूं, इसके ऊपर डिटेल्स का स्टडी है, वेरी शॉर्ट में समझाऊंगा। सब्जेक्ट 7 टाइप्स है, याद रखिए 7 टाइप सब्जेक्ट दिमाग में फिट कर दीजिए। वो 7 टाइप क्या क्या है? 7 वर्ड्स, 7 मैजिकल वर्ड्स ऑफ सब्जेक्ट। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, खत्म। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये 7 वर्ड दिमाग में फिट कीजिए। आई का ऑब्जेक्ट है मी, वी का अस, यू का यू, दे का देम, ही का हिम, शी का हर, इट का इट, ये है ऑब्जेक्ट। और रेस्ट जो वर्ड्स बन जाते हैं सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो वो है कंप्लीमेंट, यानी सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए रेस्ट ऑफ वर्ड्स। V1 जो है वो है प्रेजेंट वर्ब, जो डिक्शनरी में इन्फिनेटिव होते हैं। आप जैसा गो, वेंट, गॉन, सी, सॉ, सीन, डू, डज, डिड, आप जैसा पढ़ते हैं। मैं आपको स्क्रीन भी दिखाऊंगा, आई विल शो यू द स्क्रीन ओवर हियर, यू कैन रियली अंडरस्टैंड दिस पार्ट। एंड वो होते हैं V1 प्रेजेंट वर्ब। V5 यानी जो वर्ब में एस एस लग जाते हैं, लाइक गोज, गोज, शी मीट्स, ही टेक्स, ये दे दे फ्लाई, शी फ्लाइज, ये फ्लाइज हो जाते हैं V5। सिंपल, ये सिंपल है। तो ये सी स्ट्रक्चर को लेके एक सेंटेंस है, आज मैं आपको सिखाऊंगा। ये सेंटेंस में एग्जांपल भी रखा हूं, आने वाला स्लाइड्स में यू कैन अंडरस्टैंड इट। इसका जो निगेटिव होगा वहां पे डज और डोंट कैसे यूज होगा, फिर V1 होगा, फिर ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट यूज होगा। क्वेश्चंस बनाने से पहले डू डज पहले आ जाएंगे, देन सब्जेक्ट आ जाएगा, देन V1, देन ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट यूज होगा। डोंट एंड डजंट पहले आ जाएंगे, सब्जेक्ट होगा, V1 होगा, ऑब्जेक्ट होगा, कंप्लीमेंट होगा। एग्जाम्पल याद रखिए, शी प्लेज चेस, शी डज नॉट प्ले चेस, डज शी प्ले चेस, डजंट शी प्ले चेस। वो चेस खेलती है, वो चेस नहीं खेलती है, वो चेस खेलती है क्या, वो चेस नहीं खेलती है क्या। ये देखिए मेरा वॉइस कैसा चेंज हो रहे हैं, और इसी को लगा के हम लोग यूज करेंगे आपका यूसेज में। यही है सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, इजी है और भी आप अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, जिसमें कि सब्जेक्ट जो है आई, वी, यू, ही, शी है, उसके बाद इज, एम, आर लगाइए। उसके बाद V4 यानी आईएनजी वर्ब, गोइंग, मीटिंग, सीटिंग, डूइंग, और ओ फॉर ऑब्जेक्ट, सी फॉर कंप्लीमेंट। नेगेटिव में इज, एम, आर के बाद नॉट लग जाएगा। इज, एम, आर यदि सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा तो वो पॉजिटिव इंट्रोगेटिव, इजंट और आरंट आ गए तो वो नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो गई। याद रखिए एम एंड आई इंग्लिश में नहीं है, एम एंड आई गोइंग इज रॉन्ग इंग्लिश, आरंट आई गोइंग बोलिए, दिस इज 100% ग्रामेटिकली करेक्ट, और एम आई नॉट गोइंग। ओके, सो दिस इज द आइडिया दैट यू नीड टू फोकस ऑन प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। प्रेजेंट परफेक्ट जो है प्रेजेंट टेंस के ऊपर, वो हैव और हैज के बाद V3 फॉर्म लगाना है, यानी पास्ट पार्टिसिपल, लाइक डू, did, done, take, took, taken, taken है V3, ओके। go, went, gone, gone है V3, वही होता है V3 फॉर्म्स। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट भी दे पाएंगे आप, और have not, has not प्लस V3 लगा देने से नेगेटिव हो जाएगा। have और has सब्जेक्ट से पहले आ जाने से पॉजिटिव इंट्रोगेटिव, haven't और hasn't पहले आ जाने से नेगेटिव इंट्रोगेटिव। ये देखिए सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज बीन प्लस V4, यानी हैव बीन और हैज बीन लगा के आईएनजी फॉर्म डाल दीजिए V4 फॉर्म, वो प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव हो जाएगा। नॉट लगा के बीन लगाइए, हैवेंट और हैजंट नॉट बीन प्लस V4 यानी आईएनजी फॉर्म, वो नेगेटिव। हैव और हैज पहले आ जाएंगे, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो मैंने आपको बताया था आई, वी, यू, ही, शी, इट को लगाना है, फिर बीन लगाना है, फिर V4 लगाना है, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट जो भी वर्ड चाहिए वो देना है, वो होता है आपका पॉजिटिव इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस। देन हैवेंट और हैजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। ये देखिए थोड़ा टेक्निकल जैसा लगेंगे, बट ये पूरा आगे जाके आपको बहुत आसान लगेगा। यही सबसे बड़ा सूत्र है जो बोलते हैं टेक्निक्स, ओके। ये सारा सेंटेंसेस हैं। पास्ट टेंस जब आ जाएगा, पास्ट सिंपल फॉर्म में V2 यानी पास्ट वर्ब, लाइक वेंट, टुक, सॉ, एट, ये सारे वर्ब लगेंगे, वो है पास्ट में। डिडंट प्लस V1 लग जाएगा नेगेटिव में, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 लग जाएगा, लगेगा तो आपको सिंपल पास्ट का पॉजिटिव क्वेश्चन हो जाएगा। डिडंट से पहले शुरू हुआ तो नेगेटिव क्वेश्चन हो जाएगा। पास्ट प्रोग्रेसिव यानी पास्ट कॉन्टिन्यूस में वाज और वर के साथ आईएनजी फॉर्म लगेंगे, वाजंट और वरंट के बाद आईएनजी फॉर्म लगेगी यानी V4। वाज और वर सबसे से पहले आ जाएगा,
उसके बाद V4 लगने से क्वेश्चंस हो जाएगा पास्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म में। Was I meeting him? Was I talking to him? पूरा ये स्ट्रेंथ, इसी को देख के आप सेंटेंस बना पाएंगे। ये पूरा ग्रामेटिकली करेक्ट फॉर्म है। wasn't और weren't ओके के बाद आप कोई भी सब्जेक्ट डालिए, लाइक weren't we going there, wasn't I talking to him, मैं उनसे बात नहीं कर रहा था क्या। ये सेंटेंस का ट्रांसलेशन में मैं आपको बताऊंगा। देन पास्ट परफेक्ट जो है वहां पे हैड प्लस V3 फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, जैसे कि डन, टेकन, मेट, सीन, ये सारे वर्ड जैसा वर्ब लगते हैं वो है V3 फॉर्म। हैड नॉट के बाद V3, हैड सब्जेक्ट से पहले आ गया तो उसके बाद V3 फॉर्म आने से क्वेश्चंस बनेगा पॉजिटिव क्वेश्चंस, हैड एंड पहले आ गया तो नेगेटिव क्वेश्चंस बनेंगे। ये देखिए हैड बीन के साथ V4 जैसे हैव और हैज बीन प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव था, हैड बीन प्लस V4 बनाने से पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव हो गया। डिफरेंस वही है, हैव और हैड बन गए, बाकी सब रिमेन सेम रहेगा। यहाँ पे हैड नॉट बीन ये नेगेटिव फॉर्म है, हैड सब्जेक्ट प्लस बीन बनाने से पॉजिटिव इंट्रोटिव, हैडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन लगाने से नेगेटिव इंट्रोटिव फॉर्म आएगा। अभी आ गया सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर जो है वो आपका विल और शल प्लस V1। देखिए विल अमेरिकन इंग्लिश है, शल ब्रिटिश इंग्लिश है। आई और वी के साथ शल लगते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में, आप अभी भी यूज कर पाएंगे। विल अमेरिकन फॉर्म में यूज होते हैं और मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी फील्ड में, टेक्नोलॉजिकल फील्ड में विल का ज़्यादा फॉर्म होते हैं और हम भी इन्फ्लुएंस्ड हो गए हैं आजकल विल में। ओके सो ये है विल और शल नॉट प्लस V1 लगाने से प्रेजेंट वर्ब, ये नेगेटिव फॉर्म बनेगा। विल और शल सब्जेक्ट से पहले आने से पॉजिटिव क्वेश्चन, विल और शल प्लस नॉट आ जाने से सब्जेक्ट प्लस V1 आ जाने से नेगेटिव इंट्रोगेटिव होगा। विल और शल बी प्लस ING फॉर्म, देखिए बी के बाद V4 यानी ING लगा दिए, आई विल बी डूइंग, आई विल बी मीटिंग, आई विल बी टॉकिंग, ये आ गया आपका फ्यूचर प्रोग्रेसिव फॉर्म में बात करेंगे। मैं वहां पे आपको वेट करता रहूंगा, आई विल बी वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours, नो प्रॉब्लम, यू कैन कम एंड मीट मी, इस तरह से हम बातें करेंगे। एंड वी प्लस सब्जेक्ट प्लस विल और शल नॉट प्लस बी प्लस V4 हो जाने से नेगेटिव, विल और शल सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, फिर बी के बाद V4 लगेगा तो पॉजिटिव क्वेश्चन, विल और शल पहले उसके बाद नॉट, देन सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 आ जाने से नेगेटिव इंट्रोगेटिव आएगा। और देखिए विल हैव और शल हैव प्लस V3 आ गया, जैसा कि हर परफेक्ट में V3 लग रहे हैं, आप नोटिस कीजिए हर टेंस का परफेक्ट फॉर्म में V3 लगेगा, निगेटिव में शल नॉट ओके और विल नॉट हैव प्लस V3, शल और विल का सब्जेक्ट से पहले आ गया उसका हैव प्लस V3 हो गया तो पॉजिटिव क्वेश्चन, विल नॉट शल नॉट फिर सब्जेक्ट फिर हैव V3 हो गया तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर्म। ये है फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव जो कि आजकल फाडी डैडी हो गया है, ओल्ड फैशन, इज नॉट इनटू द फॉर्म, इतना यूज नहीं होते हैं, नहीं यूज करने से भी चलेगा। आपको प्रेजेंट टेंस सिंपल प्रेजेंट में आजकल फ्यूचर ज़्यादा यूज होते हैं, वो मैं आपको ट्रिक्स बहुत सारे ट्रिक्स सिखाऊंगा, हाउ यू ब्यूटीफुली यू कैन एक्सप्रेस योर आइडियाज इन इंग्लिश क्विकली विद इन 3 months आप कैसा फ्लुएंट बन पाएंगे। नाउ सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस हैव बीन प्लस V4 लग जाते हैं यहाँ पे, और जैसा कि यहाँ पे सिर्फ हैव बीन चेंजेस है और हर एक चीज़ ऑक्सिलरी वर्ब जो है विल और शैल सब्जेक्ट से पहले आ जाने से पॉजिटिव क्वेश्चन, विल और शैल में नॉट लग जाने से नेगेटिव इंट्रोगेटिव होते हैं। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं, नथिंग टू बी वरीड अबाउट इट, आपको और सिंपल वे में समझ में आ जाएगा। ये फॉर्मूला को लेके आपको कॉपी करना है और सेंटेंस बनाते जाना है, इस टेक्निक्स को लेके आई विल शेयर विद यू द नोट, नथिंग टू बी वरीड अबाउट इट। अभी आएगा मेन ड्रिल, ये जितना भी सेंटेंस दिया सारे सेंटेंस का एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको आई के साथ, लेकिन एज ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दैट देयर आर 7 प्रोनाउंस और 7 वर्ड्स यूज करना है मैजिकली, आई वी यू ही शी इट के साथ सेंटेंस बनाते 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 आपका फ्लुएंसी आ जाएगा। बट टुडे वी विल हैव ए फ्लुएंसी गेम, मैं आपको फ्लुएंसी करके दिखाऊंगा और पहले सेंटेंस सिखाता हूं, देन आई विल गिव यू द चांस हाउ यू ऑल कैन स्पीक एंड पार्टिसिपेट। आप सेंटेंस देखिए, जितना स्ट्रक्चर दे दिया ना सारा स्ट्रक्चर का आपको एग्जाम्पल देता हूं सेंटेंस के साथ। नाउ नोटिस हियर, दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, आई डू इट, आई डोंट डू इट, डू आई डू इट, डोंट आई डू इट, 4 सेंटेंस हो गया राइट। देन आपका प्रेजेंट प्रोग्रेसिव आ गया जो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, आई एम डूइंग इट, आई एम नॉट डूइंग इट, एम आई डूइंग इट, आर एंट आई डूइंग इट और एम आई नॉट डूइंग इट, आप कोई भी लीजिए, आर एंट आई करेक्ट फॉर्म है, ओके ग्रामेटिकली करेक्ट है। आई हैव डन इट, ये है प्रेजेंट परफेक्ट जो शॉर्ट फॉर्म है, हैव है, ओके आई हैव डन इट, आई हैवंट डन इट, हैव आई डन इट, हैवंट आई डन इट। देन प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव को देखिए, आई हैव बीन डूइंग इट, आई हैवंट बीन डूइंग इट, हैव आई बीन डूइंग इट, हैवंट आई बीन डूइंग इट। ये सेंटेंस जो मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाया ना, आई
डू इट, यानी याद रखिए सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, जो जैसा स्ट्रक्चर दिखाया था उसका एग्जाम्पल है। सब्जेक्ट प्लस डोंट डजंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, वहां पे सब्जेक्ट प्लस डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट है, आई डोंट डू इट। डू प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी आई, देन V1 यानी डू, इट यानी ऑब्जेक्ट, पूरा वो स्ट्रक्चर का स्केलेटन है, पूरा रेप्लिकेट हुआ है इसमें एग्जाम्पल्स में। सो यू कैन अंडरस्टैंड इट इजिली विदाउट एनी हेजिटेशन। आपको कैसे प्रैक्टिस करना है, ये 16 सेंटेंसेस हैं, आपको मुंह से पूरा निकालना है। आई डू इट, आई डोंट डू इट, डू आई डू इट, डोंट आई डू इट, आई एम डूइंग इट, आई एम नॉट डूइंग इट, एम आई डूइंग इट, आरंट आई डूइंग इट, आई हैव डन इट, आई हैवंट डन इट, हैव आई डन इट, हैवंट आई डन इट, I've been doing it, I haven't been doing it, have I been doing it, haven't I been doing it। पूरा इस तरह से फ्लुएंसी लाना है और आपको बार बार बोल के प्रैक्टिस करना है। इसको आई को हटा के रिप्लेस करके वी में लीजिए, वी डू इट, वी डोंट डू इट, डू वी डू इट, डोंट वी डू इट, वी आर डूइंग इट, वी आर नॉट डूइंग इट, आर वी डूइंग इट, आरंट वी डूइंग इट। और कहाँ पे इज एम आर लगते हैं, वाज वर लगते हैं, हैव हैज लगते हैं, थोड़ा सा नॉलेज आपको लेना पड़ेगा। फाइन। सो इन दिस वे यू कैन हैव दिस मैजिकल 16 सेंटेंसेस, आपको ये 10 सेकंड्स के अंदर बोलना है फटाफट। आई डू इट, आई डोंट डू इट, डू आई डू इट, डोंट आई डू इट, आई एम डूइंग, आई एम नॉट डूइंग, एम आई डूइंग, आरंट आई डूइंग, आई हैव डन, आई हैवंट डन, हैव आई डन, हैवंट आई डन, आई हैव बीन डूइंग, आई हैवंट बीन डूइंग, हैव आई बीन डूइंग, हैवंट आई बीन डूइंग। फटाफट, ये है फ्लुएंसी। इसको आर्टिकुलेट करते हैं, बार बार बोल के आर्टिकुलेट कर लीजिए, मुंह में पूरा ऐसा लाइए कि फटाफट फटाफट निकल जाएगा। फाइन। और इसको समझने का सबसे बढ़िया चीज, आई डू इट यानी मैं करता हूं, आई डू इट, डोंट डू इट मैं नहीं करता हूं, डू आई डू इट मैं करता हूं क्या, डोंट आई डू इट मैं नहीं करता हूं क्या। इसका ट्रांसलेशन वर्सन अपने मदर टंग के साथ कनेक्ट कर दीजिए, सिंपल है। एंड द ब्यूटी इज, द बेस्ट पार्ट ऑफ इट, यू कैन अंडरस्टैंड आई एम डूइंग इट यानी मैं कर रहा हूं, आई एम नॉट डूइंग मैं नहीं कर रहा हूं, एम आई डूइंग मैं ये कर रहा हूं क्या, आरंट आई डूइंग मैं ये नहीं कर रहा हूं क्या, आई हैव डन इट यानी मैं ये कर चुका हूं, आई हैवंट डन इट मैं ये नहीं कर चुका हूं, अभी तक वो सेंस में जाएगा। हैव आई डन इट मैं इसको किया हूं क्या, हैवंट आई डन इट मैं इसको नहीं किया हूं क्या, आई हैव बीन डूइंग इट यानी मैं करते आ रहा हूं, आई हैवंट बीन डूइंग मैं ये करते नहीं आ रहा हूं, हैव आई बीन डूइंग मैं ये करते आ रहा हूं क्या, हैवंट आई बीन डूइंग मैं ये करते नहीं आ रहा हूं क्या। ये है आपका ट्रांसलेशन वर्सन। सो नाउ ट्रांसलेशन तो बाद में आएगा, बट इसका यूसेज जानने के बाद इजी हो जाएगा। यूसेज से पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर्स होना जरूरी है। मैजिकल 48 सेंटेंस, ये है अमेजिंग पार्ट ऑफ इंग्लिश, इसमें ही सीक्रेट है। इसको समझ में आ गया तो हर एक टाइम में ये सेंटेंस को यूज करना है, इस तरह का वर्ब आपको सीखना है। ऐसा बहुत सारा 300 वर्ब सीखना है, 300 वर्ब्स हो गया, अमेजिंगली यू कैन स्पीक 300 वर्ब्स। आपका मिनिमम आपका 1500 वर्ब्स के आसपास में यूजेस आ जाएंगे। वो ट्रिक्स है, मैं आपको सिखाऊंगा और एक सेशन में। नाउ यहाँ पे पास्ट टेंस को देखते हैं। पास्ट सिंपल, आई डिड इट, आई डिडंट डू इट, डिड आई डू इट, डिडंट आई डू इट। Past progressive, I was doing it, I wasn't doing it, was I doing it, wasn't I doing it। Past perfect, I had done it, I hadn't done it, had I done it, hadn't I done it। मैं short form में लिख दिया हूँ, fine। I'd been doing it, I've not been doing it, ये had not एक जगह ये नीचे आ जाएगा, थोड़ा सा ऊपर चला गया। Had I been doing it and hadn't I been doing it, ये एक फॉर्म है और ये है पास्ट का फॉर्म्स। फ्यूचर देखिए, आई विल डू इट, आई वोंट डू इट, वोंट यानी विल नॉट, will I do it, won't I do it, I will be doing। future progressive, I will be doing it, I won't be doing it, will I be doing it, won't I be doing it। future perfect, okay, I'll have done it, I won't have done it, will I have done it, won't I have done it। then आ गया future perfect progressive, I'll I'll have been doing it, I won't have been doing it, will I have been doing it, won't I have been doing it। देखिए ये सब चार चार सेंटेंस हो गए, टोटल में आपको 48 सेंटेंस है या 48 पूरा स्ट्रक्चर्स है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड मैजिकल सेंटेंसेस ऑफ इंग्लिश। आप कुछ मत कीजिए, जस्ट 1 वीक टाइम लीजिए, विद इन ए वीक इसको प्रैक्टिस कीजिए एंड जस्ट स्पेंड 1 hour एवरी डे एंड प्रैक्टिस एंड बी एन आर्टिकुलेट, यूज इट विदाउट लुकिंग एट इट, और सारा चीज आपको समझ में आ जाएगा। होल सेंटेंस आप बनाने लगेंगे। सिर्फ वर्ब सीखना है और 7 वर्ड्स, जैसे कि मैंने बता दिया, आई, वी, यू, ही, शी, इट को सीखना है। नाउन्स ऐसा ही आ जाएंगे, नेमिंग वर्ड्स। सिर्फ शुरुआत करने के लिए ये सेंस आपको जरूरी है। एंड आई, इफ यू फॉलो दिस टेक्निक्स, विद इन नो टाइम यू कैन स्टार्ट स्पीकिंग विदाउट एनी मिस्टेक्स। ये पूरा कोई भी मिस्टेक सेंटेंस में नहीं होगा आपका, इफ यू फॉलो द स्ट्रक्चर्स। फाइन। सो ये है आपका ड्रिल 48 सेंटेंसेस स्ट्रक्चर्स एफर्टलेसली। कोई बिना एफर्ट डाले हुए आराम से आप बोल पाएंगे। दिस द टेक्निक्स आई वांटेड टू शेयर विथ यू। नाउ रिमेंबर वन थिंग हियर,
हर एक टेंस का सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, हर एक टेंस का यूसेज है। वो यूसेज क्या है, वो ग्रामेटिकल सेंस में हर एक सिचुएशन को कैसे आप डिस्क्राइब करोगे, ये सेंटेंस लगा के कैसे कैसे सिचुएशन में यूज होते हैं, उसका एक यूसेज है जो कि आने वाला क्लास में है। आप यदि कंटिन्यू करते रहेंगे ये सारी चीज आप सीख पाएंगे, विल बी द लकीस्ट वन। देन सेंटेंस फॉर्मेशन है, ये सेंटेंस में कुछ नहीं है, आपको यूसेज एंड सेंटेंस फॉर्मेशन में आपको 48 सेंटेंस दे दिया, और बेस्ट यूजेस में आपको आने वाला सिचुएशन में सिखाऊंगा और आपके मुंह से इंग्लिश निकालूंगा। फाइन, so this is the techniques I wanted to share with you. Thank you all of you, and this is our website mainstreamabroad.com, and this is my number 9178017011, and you can also watch my YouTube Padar Bind मार देंगे तो YouTube channel आ जाएगा, you can subscribe and watch more videos.